Hello everyone, welcome to Learning Wise. I'm your host Kamlesh Sharma, and in this video I'm going to take you to a new book of computer science, which is IT Planet Code Bot. Okay, and this is the class 7th book. Here in this particular video I am solving the exercise of chapter number 1. As far as the notes and details of chapter number 1 is concerned, we'll deal with it in some other video. But today I am taking you to number system, which is your chapter 1, and we are going to solve the exercise of this chapter, which is basically the conversion, right? So this is your page number 13 of the book, and here we are going to do the conversions first from decimal to binary. Then question number 2 is binary to decimal, question 3 is decimal to octal, and question 4 is decimal to hexadecimal. So we are going to do all the questions one by one. Right, so we are in the OneNote and I have written the same question here. So our first question is decimal to binary conversion. Decimal to binary का मतलब क्या होता है? Decimal means that the number is in base 10. Okay, so the base value of 345 is 10 and we are trying to convert it into a number of base 2. ठीक है, सो अभी हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो बेस 10 का 345 है, ये जब बाइनरी में कन्वर्ट होगा यानी बेस 2 में आएगा तो इसका इक्विवेलेंट नंबर क्या होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है. नाउ वी हैव स्टार्टेड इन द चैप्टर कि बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं एलसीएम लेके. ठीक है, सो वी विल टेक द एलसीएम बाय 2. राइट, प्रोसेस ये है कि आप एलसीएम लेंगे 2 से एंड यू विल कलेक्ट द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू अप. आप बॉटम से लेके अप जाएंगे और रिमाइंडर सारे कलेक्ट करेंगे. प्लीज डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग हियर. ठीक है, सो एलसीएम लेते हैं हम लोग यहाँ पे 3, 4, 5. यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपको पॉइंट में नहीं करना है ऑब्वियसली, बिकॉज तभी आप यहाँ पे रिमाइंडर्स को कलेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो हियर आई एम डिवाइडिंग इट in front of you so that you have the clarity. 2 ones are 2, 1. Here you have 4, so this is 2 sevens are 14. Then you have 5, so sorry, 5 here. 2, 2, 2 twos are 4, right? So your remainder is 1. Okay, so I'm going to write 172 here, which is the quotient, and I will write the remainder here. ठीक है, now let us do the division by 2 once again. हम तब तक division करेंगे जब तक कि हमें finally 1 नहीं मिल जाता. ठीक है, so 172 को करते हैं. Sorry, this is 2 8s are 16, and here we get 2, and this is 2 6s are 12. So the remainder is 0, and I'm going to write down 86 as the quotient here and 0 as the remainder here. Now once again 86 को 2 से divide करेंगे तो it's 2 4s are 8, and this is 6, so 2 3s are 6, right? Remainder is 0. Okay, so this is 43 and remainder is 0 here. Again let us do the division. 43 को जब आप 2 से divide करेंगे तो आंसर आपका आएगा 2 2s are 4. ठीक है, then this is 3, so 2 1s are 2, answer is 1. Okay, so this is our remainder. I'm going to write down the quotient here and remainder here. Again 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, वेरी सिंपल. 2 1s are 2. ठीक है, क्रॉस दिस 1. अगेन हमें एक स्टेप जाना पड़ेगा, सो 2 0s are 0, द रिमाइंडर इज 1.
right? So the answer is 10 and remainder is 1. Okay, yeah. Now अभी इसको मुझे करने की जरूरत नहीं. You all know 2 5s are 10. ठीक है, 2 5s are 10, remainder is 0. Now 2 5 is the question. 5 को कैसे करेंगे डिवाइड? 2 2s are 4, एक रिमाइंडर आ जाएगा. ठीक है, 1 will be the remainder. Let me do it here for you, although it is not required. 2 2s are 4, 5 में से 4 गया 1, so the remainder is 1. ठीक है, now 2 1s are 2. ठीक है, this is 2 1s are 2 and the remainder is 0. Now here this is our final step because यहाँ पे हमें 1 मिल गया है, तो we can't go beyond this. ठीक है, अब हमें क्या करना है? We have to collect the remainders from bottom till up, right? So हमें हमारा नंबर क्या मिलेगा? 1 0 1, ऐसे लिखेंगे 1 0, then this 1, then 0. Okay, then 2 times 1, then 2 times 0. ओके, अभी आगे और भी आई थिंक एक बार 1 और है, राइट? सो 1. जस्ट अ मिनट प्लीज. सो दिस इज योर बाइनरी नंबर. ठीक है, सो दैट मीन्स 345 जो है डेसिमल का, उसका इक्विवेलेंट है 1010111001. ओके, सो दिस इज द आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट अस डू दिस सेकेंड वन. नीचे करते हैं इसको. 113, राइट? So this is your second part. 113, this is your base 10. How are you going to convert it into base 2? Again process वही है, आप LCM लेंगे 2 से. ठीक है, I'm writing this 113 here. Let us take the LCM. 113 by 2. 2 5s are 10. ठीक है, 1 बचा, ऊपर से 3 आया, 2 6 are 12, 1 is the remainder. ओके, सो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट सेम स्टेप फॉलो करेंगे. 56 को अगेन हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2s are 4, बचा 1, 16 हो गया. 2 8s are 16, 0 आ गया. ठीक है, सो 28 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर 0 यहाँ लिखेंगे. अभी ये स्ट्रेट है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ. 2 1s are 2, 2 4s are 8, remainder 0. Okay, and the next step is 2 7s are 14, 0 remainder आएगा. अब यहाँ पे देखिए, सॉरी मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. 2 से 7 को करेंगे तो 2 3s are 6 और 1 रिमाइंडर बचेगा. मैं ये कर देती हूँ आपके लिए सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन. 2 3s are 6, रिमाइंडर 1. ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया. 2 3s are 6, रिमाइंडर 1 यहाँ लिख दिया. अगेन अब 3 कैसे जाएगा? वेरी सिंपल. 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर. ठीक है, सो यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन. 2 1s are 2, यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ गया. So that's the final stage for this. And what is the answer? 1 1 1 1 1. ठीक है, अब हम बैकवर्ड से ऊपर जाके क्वेश्चन लिख रहे हैं. मैं एक बार इसको दोबारा नीटली लिख देती हूँ. ठीक है, जस्ट अ मिनट प्लीज. या सो दिस इज 1 1 1. 3 times 1, 3 times 0, देन एक बार 1 और ऊपर देख लेते हैं कुछ और था नहीं. ठीक है, so this is the answer for your 113. ठीक है, ये बेस 2 है. नंबर था आपका 113 in decimal. All right, so this is your answer. 113 of your decimal is equivalent to 1110001 in binary. Okay, I hope you have understood this question. Now yeah, let's look into the third and fourth part. 145 and 287. 145 ये भी लिखते हैं. So 145 बेस 10 को अभी चेंज करना है हमें बेस 2 में.
ये भी देख लेते हैं कैसे होगा. We'll take the LCM by 2. ठीक है. All right. So this is 145. I'm right. uh, I'm sorry. काफ़ी बार ये ऐसे लिखने की कम हैबिट है तो मिस्टेक्स हो जाती हैं. Kindly don't mind. Yeah. 2 7s are 14. And this is 5. So 2 2s are 4. बचा 1. ठीक है. So 72 is the quotient and 1 is the remainder. आगे. ठीक है. 72 को फिर से करेंगे हम लोग डिवाइड. सो 2 3s are 6. 1 बचा. यहाँ से ऊपर से आया 2. 12 हो गया तो 2 6s are 12. रिमाइंडर इज 0. 36 रिमाइंडर 0. इसको ऐसे ही कर देते हैं. 2 1s are 2. 2 8s are 16. रिमाइंडर 0. 2 9s are 18. रिमाइंडर 0. ठीक है. This is 2 4s are 8. Remainder again. Sorry, remainder 1. 2 4s are 8. और क्योंकि 9 है तो 1 बचेगा. 9 में से 8 गया 1. ठीक है. Then next is your 2 2s are 4. Remainder is 0. The next is the final stage. 2 1s are 2. Remainder 0. Okay. Now that's the answer for this question. अब हम क्योंकि 1 पे पहुंच गए हैं और आगे नहीं कर सकते तो हम सारे रिमाइंडर्स कलेक्ट करेंगे फ्रॉम बॉटम टू अप. सो व्हाट विल बी द आंसर? 1 0 0 1 0 0 ये वाला, फिर 1, फिर 0 0 फिर 1 1 0 0 1. ओके. सो दिस इज योर आंसर इन बेस 2. और हमारा डेसिमल नंबर क्या था? ये 145. राइट. सो 145 of decimal is equivalent to 100010001 of binary. I hope you have understood this. अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे. What is the last part? 287. Okay. So the fourth part is your 287. ये आपका डेसिमल नंबर है. इसको अगेन हमें फाइंड आउट करना है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा. ठीक. तो हम फिर से इसका यहाँ पे एलसीएम लेंगे. क्योंकि बेस 2 में करना है तो 2 से एलसीएम लेंगे हम लोग, है ना. सो यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ 287 लिखा और अब हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. 287 So this is your division. 2 1s are 2. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 1 बचा. ठीक है. So 143 is the quotient and remainder is 1. Next 143. So 2 7s are 14. Right. Then this is 2 1s are 2 and the remainder is 1. ठीक है. So this is 71 and the remainder is 1. Then next stage is 71 को हम डिवाइड करेंगे 2 से अगेन. So 2 3s are 6. 1 बचा. यहाँ से 1 आ गया ऊपर से भी. So 2 5s are 10 and remainder is 1. Right. Quotient is 35 and remainder is 1. Right. आगे बढ़ते हैं. 35 को फिर से डिवाइड करना है हमें 2 से. So 2 1s are 2. 1 आ गया. यहाँ से 5 आ गया. 2 7s are 14. 1 बचा. ठीक है. I hope I am not doing it fast. Simple division है इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ that you are understanding along with me. 217 से गया 35 और क्वेश्चन हमारा रिमाइंडर 1 बचा. अब 17 को आप डिवाइड करेंगे. सीधा सीधा सा है ये तो. 2 8s are 16 होता है. 1 बच जाएगा. 17 में से 16 गया तो 1 बचा. ओके. सो 2 4s are 8. डायरेक्ट है. 0 आएगा रिमाइंडर.
फिर 2 2 ज़ा 4 बच्चा 0, ठीक है। फिर अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज 0 रिमाइंडर एंड दैट्स इट, वी हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज। 1 आ गया, इसलिए अब हम नीचे से लेके ऊपर तक अपने सारे रिमाइंडर्स कलेक्ट करेंगे। सो लेट मी राइट इट फॉर यू। 1 0 0 0, 3 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5। ऊपर देखें, ऊपर तो नहीं है और ना, दैट्स ऑल। सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 287, ठीक है। 287 डेसिमल का नंबर जो है वो आपके बाइनरी के 10001111 के इक्विवेलेंट है। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के चारों पार्ट्स हैं। ओके, now we are going to head towards binary to decimal. Okay, so wait a second for that. All right children, so the next part is binary to decimal. अब इसका रिवर्स है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके लिए 111, ठीक है। लेट मी टेक यू टू द बुक। बाइनरी टू डेसिमल का फर्स्ट पार्ट है 111। सो 111 को करना है हमें कन्वर्ट, ठीक है। ये 111 आपका बाइनरी का है, यानी कि बेस 2 का नंबर है। आप फाइंड आउट कर रहे हैं इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, राइट। सो जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है, हर एक डिजिट को 2 की सक्सेसिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करते हुए, ओके, और नेक्स्ट वाले डिजिट में उसे ऐड करेंगे। So what is going to be the process? I'm writing it here for you. 2 1 multiply by 2, ठीक है। फिर 1 multiply by 2, again 1 multiply by 2, right। अब ये क्या लिख दिया मैंने ये वाले 1 को यहाँ लिखा, इस 1 को मैंने यहाँ लिखा, और ये वाला जो 1 है आपका ये यहाँ है, ठीक है। सो 1s 10s 100 ऐसे मैंने नंबर्स लिख दिए, बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरे डिजिट के साथ प्रीवियस डिजिट ऐड हो रहा है। और ये 2 की वैल्यू क्या है, पावर्स हैं, ये सक्सेसिव पावर्स ऑफ 2। सो फर्स्ट में यूनिटरी पोजीशन में 2 की पावर 0 है, नेक्स्ट वाले वैल्यू में 2 की पावर 1 है, एंड उसके नेक्स्ट वाले में 2 की पावर 2 है, राइट। सो अब कैसे सॉल्व होगा ये, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस। यहाँ ऐड है, सो विल पुट द ऐड, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मीन्स एक ही बार लिखना है 2 को, राइट। फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। You should always remember whenever there is a number जिसकी पावर 0 है, ओके, इसका मतलब है आंसर हमेशा 1 आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। किसी भी नंबर की पावर 0 है उसका मतलब है आंसर 1 है। सो 2 की पावर 0 का मतलब है आंसर 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 0 होगी तो आंसर 1। किसी भी नंबर का, कोई भी XYZ कोई भी नंबर होगा, उसकी पावर 0 है, इसका मतलब कि नंबर व आंसर 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ 2 की पावर 0 है तो मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 into 1 is 4, यहाँ प्लस लगा देते हैं, then 2 1 ज़ा 2, then 1 1 ज़ा 1, ओके। सो 4 + 6 + 1 7, राइट। सो अब ये 7 किसका है भाई, दिस इज योर बेस 10, राइट। So 111 of binary is equivalent to 7 of decimal. So that means जब आप अपने कीबोर्ड से 7 प्रेस करते हो तो वो कैसे चेंज होता है, 111 में, ठीक है। So this is the answer. I hope समझ आ रहा है आप लोगों को। Now the next is 1101. B पार्ट है इसका 1101।
ठीक है, दिस इज योर बेस 2। अगेन अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बेस 10। ये क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ मैं बिकॉज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। आई हैव गॉट दिस हैबिट ऑफ पुटिंग क्वेश्चन मार्क। अब ये 1101 यहाँ लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ब्रैकेट डालेंगे, फिर प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर थर्ड हमारी वैल्यू थी 0 मल्टीप्लाई बाय 2, देन लास्ट वन वाज लाइक दिस। बेसिकली हमें लिखना यहाँ से चाहिए बट मेरी हैबिट डली हुई है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट दिस वे। सो मैं आपको ये यहाँ पे इंडिकेट कर देती हूँ, ये 1 यहाँ है, ये वाला 0 ये है, दिस वन इज योर एंड दिस वन इज योर, फाइन। सो 1101 को हम क्या कर रहे हैं, 2 की सक्सेसिव पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये यूनिटरी पोजीशन पे है तो ये 0 से मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई। एंड प्लीज ध्यान से देखिए कि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, मतलब अपने नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ये पावर्स को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो 2 से ही, ठीक है। फिर यहाँ प्लस साइन, यहाँ 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 ही आएगा। 2 की पावर 0, या ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। ये स्टेज दोबारा से, ये वाला स्टेप दोबारा समझिए। 2 की पावर 3 का मतलब था 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो उसी से, 2 से ही, सो 2 इंटू 2। 2 की पावर 1 मतलब 2, सिंपल, 2 को एक ही बार लिखना है, और 2 की पावर 0 मतलब 1, फाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, राइट। सो 8 इंटू 1 इज 8, प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, फिर प्लस 0 इंटू 2 इज 0, फिर 1 इंटू 1 इज 1, राइट। सो द आंसर इज 8 plus 4 is 12 plus 1 is 13. So the answer is 13 in decimal, right? So 1101 of binary is equivalent to 13 of the decimal number system. I hope you have understood this question, right? Chalo. So in the next video, I am going to solve these two, decimal into octal and this decimal to hexadecimal. So wait for that video to come. Thank you so very much for watching. Keep watching my channel Learning Wise. It's all created for you. इस चैनल की सारी वीडियो आपकी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए है, सो कीप वॉचिंग द चैनल।